میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ جی. افتخار چودھری صاحب جو ہیں ان کا میں بہت بہت مشکور ہوں، کیونکہ کچھ آج کچھ پھر اسٹوڈیو میں گڑبڑ ہو گئی، کوئی آواز باہر نہیں جا رہی تھی، کچھ کائی صاحب لیٹ ہو گئے، لیکن افتخار صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جی یہ اکیلے ہی پروگرام چل رہا ہے اور کائی صاحب بھی مس ہے. نہیں، انہوں نے میسج شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. بالکل، انہوں نے میسج انہوں نے بھی کیا تھا، ایک اور جگہ سے بھی میسج آیا تھا کہ جی آواز نہیں آ رہی باہر. اینی وے اسد قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کر لیا، تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے لیے جو سوال تھے وہ بہت سارے جوابات جو ہیں وہ تو افتخار بھائی نے دے دیے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں آج کے پاکستان میں، کیونکہ جو 14 مئی کا انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ جی الیکشن کرواؤ، وہ تو حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، آج تک الیکشن نہیں ہوئے. لیکن عدالت اس پر کیوں خاموش ہے؟ کیا عدالت بھی نامعلوم افراد جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سائے میں آئی ہوئی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ ایسا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس ٹائم ہم نے فرینکلی دلی طور پر ہم نے حمایت کی کہ پاکستان کے اندر دو چور پارٹیوں نے پاکستان کو برباد کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ جب بھی آتے ہیں اپنے للے تللے میں پڑ جاتے ہیں. تو چلیں یہ ایک حساب کا نعرہ لے کے آئے تو ان چوروں کا کوئی حساب بھی ہوگا، اور یہ طاقتور ادارہ ہے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک ٹائم حساب بھی ہوا، بڑی اچھے طریقے سے اداروں کا نیب کا قیام عمل میں لایا گیا، پھر ان کو پکڑ دکڑ بھی ہوئی. پھر ایک کسی نے کہا کہ جب تک آپ ان کو سختی سے، یعنی کہ بلکہ ایک بندے نے ان کو کہا، مشورہ دیا خان صاحب کو، مشرف صاحب کو، کہ ایک انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے، دوسری انگلی کاٹنے کی نوبت نہیں آئے گی، سارا خزانہ جو ہے نا وہ بھر چکا ہوگا اور یہ لوٹی دولت آ جائے گی. تو سر اب بھی یہی صورتحال ہے. میں بہت پریشان ہوتا ہوں عموماً ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ لوگ پھر دوبارہ اسی طرح اقتدار پر قابض ہیں، من مانی کر رہے ہیں، جو ان کا دل کر رہا ہے، جو جیسے چاہ رہے ہیں یہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. کیونکہ جب پہلے کبھی ایسے موقع آتے تھے تو تب ہماری نظر ہوتی تھی افواج پاکستان پر، چلیں جی ایک ادارہ ایسا ہے جو آئے گا. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ کو اتنی انٹرفیئرنس کرنی تھی تو آپ ڈائریکٹلی آ کر اس پورے نظام کو کنٹرول کرتے. کم از کم ان چوروں چکوں کو تو ہمارے ساتھ میں نہ بڑھاتے جنہوں نے ایک سال میں جو بربادی اور تباہی کر دی ہے. تو اس ٹائم تو پاکستان کے اندر معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ سر ہر آدمی اس ٹائم ڈسٹرب ہے. کوئی بندہ مجھے نہیں ملا جس بندے نے کہا ہو کہ ہم ان حالات سے خوش ہیں. جو کمزور سے کمزور لوگ ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم تھوڑا سا لیڈ کلاس کرتے ہیں، دیکھیں کل پیٹرول پرائسز بڑھی ہیں، 20 روپے کٹھے بڑھا دیے، اور میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا یہ تھا. سر مجھے بتائیں، یہ لوگ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، قرضے اور یاشیاں یہ کرتے ہیں قرضے لے کر، اس کا خمیازہ ہم عوام کو بھگتے ہیں. جب بھی یہ اسحاق ڈار صاحب یا ان کی جو کابینہ ہے یا جو وزیر اعظم صاحب یا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم، ساری سیاسی جماعتیں اسی طرح نہیں کو کرپشن کے سارے کیسز تھے نا. تو سر یہ جو کیسز، اب میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا ابھی آج دوپہر کو، تو وہ یہی دوست بات کر رہے تھے جی عمران خان نے تو اس ٹائم ان کے خلاف جو مقدمات بنائے تھے اور ان کو انتقام کرنے، میں نے کہا نہیں، اس نے ایک میں مقدمہ نہیں بنایا، یہ جو مقدمات تھے یہ پہلے کے دن کے وہ ان کے اوپر تھے. تو سر اب جا کر یہ جو اب جو کاروائی عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ جو سازشیں پلاننگیں کر رہے ہیں، سر میں ایک چیز واضح کر دوں، سیاستدان کی کئی زندگیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو اب آخری ادوار چل رہے ہیں. دیکھیں طبعی موت مر گئی پیپلز پارٹی، اور اب نون لیگ بھی اپنی طبعی موت مرنے جا رہی ہے. جتنا انہوں نے گند مچا دیا، جاتے جاتے چند دنوں کی آپ مہمان آپ کی حکومت ہے، اور آپ آئل پرائسز جس طرح تیزی سے بڑھا رہے ہیں، اور پھر بجلی کی پرائسز ایسی بڑھائی ہیں سر جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ایک لوٹ مار کا ہمارے یہاں یہ ٹرک گر جاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ایک دفعہ پیٹرول اور ڈیزل کا ٹرک گر گیا تو پورا گاؤں اس پہ پل پڑا، جس کے ہاتھ بالٹی آئی، پتیلی آئی، کچھ بھی آیا اس نے پیٹرول بھر لیا. یہ حال ان چوروں نے خزانے کا کیا ہے. یہ ایک ساری پارٹیاں، اور اس پہ کئی حادثات بھی ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے سر حادثہ تو ابھی ہونا ہے نا، وہ ابھی تو بھر کے لوگ وہ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں تک لے گئے تھے. اب یہ بھی لوٹ مار کر آ کے
खजाने इन्होंने भर लिए हैं। अब वो जो पेट्रोल पंप है वो अपने घरों तक लेके जा चुके हैं। अब जब भी कोई नई हुकूमत आएगी, कोई नया इंतजामिया आएगी, देखे सदा से हालात एक जैसे नहीं रहते। मैंने देखा कि एक वक्त पे वजीर आज़म नवाज शरीफ था और एक वक्त नाअहल होकर घर जा रहा था, एक वक्त इमरान खान वजीर आज़म था, एक वक्त में वो एक आम सी गाड़ी में बैठकर अपने बनी गला चला गया था। तो सर इंसान अपने ही जो दोस्तों यारों से सीखता है, और ये दुनिया के अंदर जो निशानी इबरत लोग बनते हैं, आम लोगों के लिए भी सबक होता है। ये नहीं कि जिसको दफना के आए हैं बस इसी को मरना था, वो भाई आपने भी मरना है। ये नहीं है जिसका जनाजा पढ़ के आ गए कि जी बस भूल जाओ जी, बस ये जनाजा पढ़ के आ गया, अब मुझे तो कभी नहीं मौत आनी। तो सर इन सब ने मरना है, इन सब का इक़्तिदार भी खत्म होना है, और वैसे भी इनके साथ चंद दिन का इक़्तिदार रह गया। तो सर जितनी ये कोशिशें कर रहे हैं, अभी ये जो इन्होंने पेट्रोल पंप भर लिए हैं घरों में, ये सारों इसके हिसाब होंगे। पिछली करप्शन का तो हमें नहीं पता, उनके केसेस इन्होंने माफ करवा लिए हुए हैं। ये किस तरह शोर डालते थे जब इमरान खान के दौर में कोई 5 रुपए या 4 रुपए 3 रुपए जैसे भी बढ़ता था, तो ये शोर कैसे मचाते थे, जरा सुनिए। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? 12 इनके इस बयान पे मैं सदके जाऊं। अभी ये जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। बहरहाल प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आखिरी सवाल है आपके लिए कि हमारा जो मुल्क है उसकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, उसकी मतलब कि दुनिया में लोग जो हमारे मुल्क में वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, उस हवाले से बात करते हैं कि लोगों को जेलों में डाल देते हैं बगैर FIR के, घरों में घुसते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत है ये सब कुछ करवा रही है, या इनके पीछे भी जो एक मजबूत हाथ है वो भी इसमें शामिल है? कैसा आज यही एक प्रोग्राम में बातें हो रही थी, वो कह रहे जी ये मकाफाती अमल है, इमरान खान ने इनके साथ किया, TLP के साथ किया, और ये मैंने उन्हें ये जवाब यही है मेरे पास सर के, ये देखें इस वक्त ये जो लोग कर रहे हैं ये क्या आईन और कानून के तहत कर रहे हैं? अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप भी फिर उसको दोहराएंगे, फिर वो एक चेन चल जाएगी, और फिर दुश्मनियां हमारे यहाँ सालों साल नस्लों तक क्यों फैलती हैं? सिर्फ इसलिए कि आप बदले की आग में जलते रहते हैं। और देखें सियासतदान का दिल बड़ा होना चाहिए, और ये मसालियत के ऊपर मसलहत के ऊपर चलते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि यार सबको मिल मिला के साथ चलाएं। तो सर जो इस टाइम इन्होंने 1-1.5 साल में कर दिया है, इनको यही था ना कि देखें हमारे एस्टेब्लिशमेंट खुद तो आ नहीं सकती थी, इनको ये लगा कि हम अब आ चुके हैं, इन्होंने हमें लाया है, अब हम जो मर्जी करें, हमें हटाएंगे तो फिर इनके साथ ऑप्शन नहीं है। तो इनको भी पता था उनकी मजबूरी का, उनको पता था इनकी मजबूरी का, तो इन्होंने फिर एक ही देखा, जैसे यजीद ने देखा कि मैंने हर बंदे को राम कर लिया है, एक ही खानदान रहता है, ये चंद लोग हैं, ये 72 लोग हैं, या इसके अलावा इनको अगर मैं इनसे बैत ले लेता हूँ या इनको डरा देता हूँ और ये मेरे हक में बैठ जाते हैं, तो फिर मेरे इक़्तिदार को कोई नहीं हटा सकता, मैं जब चाहूं मरने तक मैं इक़्तिदार में रहूंगा। लेकिन आपने देखा 3-4 साल तक वो इक़्तिदार में रहा। इनको भी सर यही लगा कि हम हर जबान को बंद करा लें, अदलिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इमरान रासिया में जो सहाफ़ी हमारे ऊपर तनकीद करता है, जो हमें आईना दिखाता है, हम उसका मुंह बंद कर लें तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, हम जब चाहें जितनी मर्जी अपने इक़्तिदार को तूल देकर इस मुल्क का हुक्मरानी कर लें। लेकिन सर हमेशा जिसकी जो प्लानिंग होती है वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि मेरा रब प्लान है सबसे बड़ा, वो उसने ये दुनिया बनाई है, ये निज़ाम बनाया, वो अपने तरीके से इस निज़ाम को चला रहा होता है। जब से ये लोग आए हैं, हालांकि मुझे यकीन था कि ये लोग हालात की नज़ाकत को समझेंगे और ये सरेंडर करके इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन जिस दलदल में ये गिरते गए, हर वो फैसला किया जो पाकिस्तान के तारीख के अंदर कोई हुक्मरान नहीं कर सका। सर ये दर्दी रोना ये खुद रोते हैं कि हम सख्त फैसले ले रहे हैं, हम बड़े दिल पर वजन रख कर बोझ डालकर हम ये फैसले ले रहे हैं। सर ये मगरमच्छ के आंसू नहीं रो रहे, सख्त फैसले लेने हैं सर तो खुद लेना, कुर्बानी देनी है तो खुद लेना। 74 साल से तो मेरी आवाम कुर्बानी दे रही है, आम मतवसत तबका कुर्बानी दे रहा है, इन्होंने कभी कुर्बानी दी है? कल हमारे अली चीज साहब में भी बयान आ गया कि देखें जी ये जो बुरा वक्त होता है, सख्त वक्त होता है, आजमाइश होती है।
सर आजमाइश सिर्फ क्या गरीबों के लिए रह गई है, आम पाकिस्तानी के रह रही है। सर लोग बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे। अब बिजली तो बुनियादी जरूरत है, 50 रुपए की छूट कर दी है। पेट्रोल आप 200 रुपए का डालते हैं सर, तो 200 रुपए का पेट्रोल डालकर आप दफ्तर तक नहीं पहुंच पाते। अब इसके अलावा आप देखें 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, आटा इतना महंगा हो गया है, ऑयल घी की जरूरत पूरी नहीं हो रही। तो सर बाकी चीजें तो आप छोड़ दें ना, कि बच्चों की एजुकेशन, आप लग्जरी लाइफ, वो सब कुछ तो अब आपका ख्वाब बन गया है और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह ये मोशियत चला रहे हैं, या जितने ये लल्ले तलल्ले कर्जे लेकर अब मुल्क को दिवालिया कर चुके हैं, देखें जिसके पास लाख रुपया सेविंग थी सर वो 50,000 हो गया है। ये महंगाई ने कर दी है, तो आपका रुपया तो दिवालिया हो गया। इनके रुपया डॉलरों में, इनकी दौलत डॉलरों में, इनके पास सोना पड़ा हुआ है, तो सर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क गरीब आदमी को, आम आदमी को पड़ रहा है। कुर्बानी भी हमेशा आम आदमी देता रहा। ये अशराफिया जब तक ये निशान में इबरत नहीं बनेंगे, इनके ऊपर कुछ सख्त आड़ नहीं पड़ेगा। और देखते हैं अब हमें, जब मैं बार बार यही कहता हूँ, इससे पहले हमें उम्मीद होती थी उस ताकतवर इदारे से, अब अल्लाह माफ करे, पता नहीं वो इनके हमायती हैं या उनको क्या मजबूरियां हैं। हम कहते हैं इनको निकालो, आप खुद आ जाते, लेकिन कम अज कम हिसाब तो करते। हमें ये तो होता कि ये आप जो हिसाब करेंगे वो अदालतों के जरिए यहीं पे कंट्रोल तो करेंगे। तो सर अदालतें और सारी चीजें इनके कंट्रोल में है। इन लोगों ने इस निजाम को, अभी देखा ये पनीरी इन्होंने लगाई थी, 30-35 साल में 2 नस्लें जवान हो जाती हैं। वो जो बच्चे, वो जो जजेस, वो जो लोग पढ़ पढ़ा के वो ब्यूरोक्रेसी लगाई थी, वो आज इन्हीं को फायदा दे रही है। मुझे बताएं, एक सहाफी इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, ब्यूरोक्रेसी कैसे बोलेगी, जजेस कैसे बोलेंगे? तो अदलिया के ऊपर सर पहले उम्मीदें थी, लेकिन एक चीफ जस्टिस, एक आदमी, एक सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर हिम्मत नहीं है, दिल में बड़कपन नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर हर बंदे की कोई कमजोरी है, कोई ना कहीं ना कहीं वो काबू आ जाता है। तो यही को सर हो रहा है, एक ही बंदा इनके काबू नहीं आ रहा, उसका नाम आपको पता है, इमरान खान है। बाकी सब कहीं ना कहीं मैनेज भी हो जाते हैं, उनकी कमजोरी भी आप कहते चल जाती है। तो यही कुछ ये कर रहे हैं। चलें ठीक है असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला शुरू मैंने किया है कि 1 to 1 जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छा रहेगा। हाँ वो बेहतर रहेगा। जी सर, दूसरा आपने क्लिप माशाल्लाह बड़े टाइम पे प्ले किया। ये इसी तरह लोगों की ये सियासत करते हैं कि मुनाफिकाना चेहरे एक्सपोज हुए हैं। और सर दूसरा जो वज़ीर आज़म साहब मगरमच्छ के आंसू रोते रहे, बड़े बड़े अच्छे जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर, ये सारे एक्सपोज हो गए हैं। इनके पास अब सियासत नहीं है, सियासतदान की कई जिंदगियां होती हैं, इमरान खान के पास अभी और जिंदगियां हैं। वो जब भी वो आएगा इक़्तिदार में, भट्टो मर गया ना, लेकिन उसकी पार्टी अभी तक जिंदा है। तो इमरान खान को भी डैमेज करके, उसको सजा देकर, उसको खुडे लेने लगा कर भी उसकी पार्टी, उसकी नजरिए, उस सोच को खत्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो और परवान चढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो है, उनकी जो स्पीडें हैं वो तो नजर आ गई, जिनकी बड़ी धूम थी, बड़ा शोर था। लेकिन चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। लाजमी। अल्लाह हाफिज जी। ये तो थे असद काजी साहब ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। उन्होंने ज्वाइन किया, थोड़ी देर हो गई लेकिन आए ज़रूर। वो क्या कहते होते हैं, देर तो हुई लेकिन आए हजूर। तो चलिए, इफ्तिखार चौधरी साहब का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनको लिंक भेजा कि जी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अवेलेबल हैं, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मेरा प्रोग्राम जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ होगा। और जो आज इशू थे, इनके अलावा बहुत सारे और इशू चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उन पे बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ, और वो ये है कि अपनी वोट का ख्याल करें कि आपने किसको वोट देनी है, और उसका पहरा भी दें कि जिसको आपने वोट दिए वहीं से आपका वोट निकले। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।